Well, good morning, everyone. I am Milan Vaishnav, welcoming you all again for the trade setup for the day. आज हम शुरुआत कर रहे हैं नए वीक की and the week has opened on a little subdued note and this was pretty much on the expected lines. हमने last week ये opinion दिया था, we had issued a research कि markets में थोड़ा up move आएगा and that up move did came because the previous week was one of the strongest strong weeks, if not the strongest, that we have seen in the recent past. लेकिन हमने जो अभी वीकली नोट जो इशू किया था उसमें हमने मेंशन किया था कैटेगोरिकली दैट द टेक्निकल जो सेटअप है अभी मार्केट का वो ये पॉसिबिलिटीज की ओर हिंट कर रहा है कि कुछ कंसोलिडेशन हो मार्केट में, नॉट डिक्लाइंस एज सच, लेकिन कुछ कंसोलिडेशन होना अभी बनता है मार्केट में विच विल मेक द अपमूव जो कि हमने पिछले हफ्ते में देखा more sustainable and healthy. So let's begin today and explore what trade setups that we can find for ourselves today. मैं थोड़ा ये हटा लेता हूँ कोड्स को. Before I start, or since we are beginning a new week, I'll walk you through the setup on the weekly charts first, so that by the time we approach this entire week, we must have the larger picture in mind. This is the oft-repeated thing that I always say. ये वीकली चार्ट है और ये जो बार हम जो देख रहे हैं, it's a white, strong white candle जो कि बनी है पिछले हफ्ते की कैंडल है, and all 5 days of the past week have been ended on a positive note. सिर्फ एक ही दिन था जहां पे 100-day moving averages के पास मार्केट ने कंसोलिडेट किया था. After that it resumed its up move. तो ये वीकली चार्ट है. हमने देखा है कि एक स्मॉल कंसोलिडेशन पैटर्न से मार्केट निकल गई है. That is one thing, and importantly it has managed to move about the middle average of the Bollinger Band, that is 20 period moving average. ये वीकली चार्ट है तो 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट बंद हुई है. दिस 20 वीक मूविंग एवरेज इज एट अराउंड 16580 लेवल्स. तो ड्यूरिंग द वीक ऑन क्लोजिंग बेसिस वीकली चार्ट्स पे ये लेवल 16500 या 580 के बीच का जो जोन है वो एक सपोर्ट लेवल के तौर पे मार्केट को सपोर्ट दे सकता है. बिसाइड्स दैट we also see that the RSI has marked a 14-period high, and which is not the case with the Nifty. तो RSI में भी एक अच्छा खासा strong bullish divergence हमें दिख रहा है. But that being said, consolidation तो रहेगा मार्केट में because you cannot have a one way parabolic up move. तो इसमें हम conclusion यही draw कर सकते हैं कि markets are due for some consolidation. लेकिन ये कंसोलिडेशन होगा, रेंज बाउंड होगा और कोई मेजर डाउनसाइड आने की गुंजाइश अभी नहीं है जहां तक मार्केट 16,500 के ऊपर है निफ्टी. लेट्स मूव टू द डेली चार्ट. ये डेली चार्ट है. मार्केट्स हैव कम आउट फ्रॉम द फॉलिंग चैनल. इंपॉर्टेंटली एक दिन के कंसोलिडेशन के बाद वो 100 डीएमए के ऊपर भी गई है. अगेन द 100 डीएमए इज अराउंड 16,525. So 16,525 is the 100 DMA. 16,580 is the 20 period weekly moving average. So this translates into the zone of 16,500 to 16,600, acting as a strong support zone for the markets. Unless the market slips below 16,500, don't expect any major downsides. It's a different thing that you see some consolidation, some paring of gains, some intraday profit taking bouts. Lekin overall, the markets will not sustain the lower levels for long. With a caveat, I am saying this, that it's important that Nifty keeps its head above 16,500 level. तो ये कंसोलिडेशन के बाद अगर अपमूव बनता है तो इसका लॉजिकल टारगेट लेवल्स है वो हम 17,000 लगा सकते हैं क्योंकि 17,051 is the 200-day moving average, and also on the higher frame chart
17,073 is the 50-week moving average. So 50-week moving average, just about 17,000. 200 DMA of the markets, daily charts पे of course मैं DMA की बात कर रहा हूँ, just about 17,000. This makes 17,000 a potential upside target for the Nifty in the near term. या तो हम इसको upside target कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं that this is the point where Nifty may likely exhaust its up move that we are witnessing today. Let's move to the daily chart. डेली चार्ट में ये आज का बार है. अगेन एक माइनर सा डबल टॉप निफ्टी ने बनाया है तकरीबन 16,762 के आसपास, और ये थोड़ा सा मार्केट को कंसोलिडेशन के अंदर ये पुश कर सकता है. अगेन दिस इज द 50 डीएमए है 16,523, तो ये 16,523 की लेवल कैन एक्ट एज अ सपोर्ट ऑन ए क्लोजिंग बेसिस फॉर द मार्केट. 16,525 there is no need to be exact. टेक्निकल्स में कभी भी आप लास्ट डेसिमल तक एग्जैक्ट जाने की ट्राई न करें, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज मार्केट्स डू नॉट मूव दैट वे. तो लेट्स टेक रियलिस्ट लेवल दैट इज 16,500. एक हम राउंड फिगर पकड़ते हैं तो 16,500 के ऊपर जब तक निफ्टी रहता है तब तक इसके कंसोलिडेशन होने के चांसेस ज्यादा है और डाउनसाइड्स होने के चांसेस लिमिटेड है. Now, this being said, let us observe what the options have to say, because this is the expiry week. इस monthly expiry हो रही है इस महीने, और it is quite obvious कि अभी बाकी के जो जितने भी sessions है will remain dominated with the rollover centric activities. तो आज का अगर हम इंट्राडे एक्शन देखते हैं तो 16,700 का लेवल है, वहां पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई है 3.3 मिलियन पुट्स. So that shows that as of now, there is a broad consensus among market participants that Nifty 16,700 के ऊपर आज जाएगा. नहीं, ये इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हम इसका अगर हिस्टोरिकल ऑप्शंस का हम सेटअप देखते हैं specifically for this month expiry, then it has got a maximum call OI at 17,000 and maximum put OI at 16,500. Now let me take you back to what I just said a couple of minutes back. मैंने चार्ट्स पे जो लेवल कही थी कि निफ्टी जब तक 16,500 के ऊपर है तब इसके नीचे जाने की गुंजाइश कम है. एंड इन द सेम वे अगर आप 50 वीक मूविंग एवरेज देखे या 200 डे मूविंग एवरेज देखे, दोनों ही 17,000 के थोड़े से ऊपर है. तो 17,000 एक टेक्निकल तौर पे अपना एज पर द पैटर्न एनालिसिस या चार्ट्स पे वो रेजिस्टेंस लेवल है, और वही रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आप देखते हैं तो ये ऑप्शन डेटा में भी दिख रही है. द मैक्सिमम पुट वाई इज सपोज टू एक्ट एज ए सपोर्ट अनलेस वायोलेटेड, एंड द अपसाइड्स मे रिमेन कैप्ड एट 17,000, followed by the strong resistance that we have at 16,000, which is created today. क्योंकि आज total 7.3 million puts में से तकरीबन 50%, 3.1 million तो आज ही के दिन में ऐड हुए हैं. तो टेक्निकल चार्ट का स्ट्रक्चर और ऑप्शंस डेटा मिला के we can fairly say that for this week Nifty is likely to oscillate between 16,500 and 17,000 on the upper side. A caveat here is that, or the key deciding level for this week would be 16,500. ये अगर वायलेट होती है तो हम थोड़ी इंक्रीमेंटल वीकनेस देख सकते हैं. जब तक ये वायलेट नहीं होती है then we will just see consolidation in a defined range and no major downsides, and therefore all downsides must be used to go long in the index, and shorts must be either completely avoided, या तो shorts को पूरा avoid करें, या try and put a shallow trade with a very tight stop loss. क्योंकि at the cost of repetition मैं बता रहा हूँ कि 16,500 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक हो सके तब तक वहां तक शॉर्ट नहीं कर रहा है, except you are taking a small 15, 20, 30 odd point kind of a trade. So let's move to the intraday chart. आज निफ्टी 10 मिनट्स का चार्ट है, आज ओपन ही नीचे हुआ है. So for the last 4 candles have been negative, और ये एक थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया था, सॉरी ओवरसोल्ड हो गया था, एंड निफ्टी इज नाउ ट्राइंग टू फाइंड ए बेस. तो यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड हमें बनता है दैट वी कैन बाय
थोड़ा सा इसको नीचे आने की थोड़ी गुंजाइश है, तो 16,570 और 590 के बीच में हम फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं. Keep a stop loss of 16,525 and expect a target of 16,700 on Nifty futures. While I say this, मैं ये एक चीज एम्फसाइज करना चाहूंगा कि ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये पोजिशनल ट्रेड है. ये 1 या 2 दिन का या 2 से 3 दिन का होल्डिंग पीरियड वाला ट्रेड है. शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म एक्टिव पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है. ये इंट्राडे नहीं है ट्रेड, ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूं. And also with that, I repeat that I am suggesting to buy Nifty futures between 16,570 to 1600 या 30 पॉइंट के गैप में आप निफ्टी फ्यूचर्स ले सकते हैं. मेंटेन स्टॉप लॉस ऑफ 16,525 on a closing basis and expect a target of 16,700 on this. This is a positional trade and not a intraday trade. Moving to the options. Options में ये expiry का वीक है और I would not suggest taking any directional trade क्योंकि मार्केट में स्पाइक्स आ जाए ऊपर की साइड या नीचे की साइड, लेकिन as such it is likely to oscillate between these two ranges. तो शायद हमें बिफोर एक्सपायरी हमें डायरेक्शनल दिस थिंग बायस ना मिले हमें. तो इसमें इस बार मैं एक न्यूट्रल स्ट्रेंगल सजेस्ट करूंगा वेयर यू कैन बाय, मैं आपको दिखाता हूं, वेयर यू कैन बाय निफ्टी, सॉरी, वेयर यू कैन सेल 16,500 पुट एंड ऑल्सो सेल 17,000 कॉल, both for June 28 expiry. And you can have income of 80 rupees. That is total premium earned would be 70 plus 11, 81 rupees. और 4050 की आपको प्रीमियम इनकम हो सकती है. ये न्यूट्रल ट्रेड है. इट इज रिगार्डलेस ऑफ द निफ्टी गोइंग इन एनी डायरेक्शन. इसको हमें एग्जिट कर देना है या तो 17,000 के ऊपर जाए निफ्टी, जिसकी गुंजाइश बहुत ही कम है, या तो 16,500 को वायोलेट कर दे, तब ये ट्रेड आपको क्लोज कर देना है. जब तक ये 16,500 के ऊपर और 17,000 के नीचे निफ्टी सेटल होती है फॉर 28 of July expiry, then both of these sold options will expire worthless and will get to keep the entire premium income of 4050. तो एक स्ट्रेंगल में सजेस्ट कर रहा हूं, sell 16,500 put, sell 17,000 call. I hope this is clear. Sell 16,500 put and sell 17,000 call. Neutral strangle call है, directional कोई call मैं नहीं ले रहा हूँ, this being the expiry week. So this is a neutral call that I am taking. थोड़ा इस बार हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं. बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, बैंक निफ्टी ओवरऑल इज लाइकली टू रिलेटिवली आउटपरफॉर्म द निफ्टी. बैंकिंग स्टॉक्स, थोड़े फाइनेंशियल स्टॉक्स थोड़े से अच्छे रहेंगे इस बार ऑन रिलेटिव टर्म्स. और ये वीकली चार्ट हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो कि ये एक हाई पॉइंट बनाने के बाद 41,829 का हाई पॉइंट बनाने के बाद इट वाज अंडर अ फॉलिंग चैनल, इट वाज इनसाइड ए फॉलिंग चैनल. It has attempted a breakout और वो 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर बंद किया है, जो कि 36,458 है. दिस इज अ 50-day मूविंग एवरेज. बट बिसाइड्स दैट एक फॉलिंग चैनल के बाहर तो वो निकला ही है. तो जब तक वो 36,000 के ऊपर रहता है, दिस अटेम्प्ट टू ब्रेक आउट ऑफ ए फॉलिंग चैनल विल रिमेन इन फोर्स. इंपॉर्टेंटली अगेन द RSI has made a 14 period high, लेकिन वो न्यूट्रल है, कोई हमें डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है इसमें, बुलिश डाइवर्जेंस जैसे कि निफ्टी में दिख रहा था. और इसका अगर हम डेली चार्ट देखते हैं, देन इट हैज मूव्ड अबव इट्स 200 DMA. 200 DMA की लेवल मैं आपको बताता हूं इज 36,412. सो इट ट्रांसलेट्स इनटू सेम थिंग. जब तक ये 36,400 के ऊपर है ऑन क्लोजिंग बेसिस, this attempted breakout will
स्टे इन फोर्स। जैसे वीकली चार्ट का ही आपको ये फॉलिंग चैनल है जो डेली पे मैंने प्लॉट किया है। So apart from breaking out of this, it has also moved above its 200 DMA, which is something that we need to take note of, except the fact that it is slightly oversold. Again, I'm sorry, overbought 72.05 is the RSI. लेकिन overbought होना किसी भी चीज का, इंडेक्स हो या स्टॉक हो, is a sign of strength for that particular instrument. So merely being overbought, it's not a sign that you must try to sell that thing. ये मैं खास बता देता हूँ because I have seen people trying to go short or sell just because something is overbought. In fact, ये overbought होना एक strength की निशानी है, क्योंकि overbought वो तभी होता है because there is a strength on the buying side. और जब तक वो strength बनी रहती है तब तक वो overbought होता है, and it is very common that things continue to move higher despite being in overbought territory. In fact, as I said, ओवरबॉट होना एक स्ट्रेंथ की निशानी है, ये शॉर्ट करने का टूल नहीं है। सो बैंक निफ्टी में भी ऑप्शंस अगर हम देखते हैं तो ऑप्शंस डेटा इज स्लाइटली इनकंक्लूसिव, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने 37,000 की आज मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई है, एंड 37,000 ऑल्सो रिमेन्स द highest point where there is a concentration of call OI. So as per this data, 37,000 is the point where people don't expect Bank Nifty to go so far as this week's expiry is concerned, whereas the highest call OI, highest put OI is at 36,000 followed by 36,500. तो इसके भी वही जो लेवल्स हमने चार्ट पे देखी थी कि इन टर्म्स ऑफ 200 DMA या इन टर्म्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट ब्रोक आउट फ्रॉम ए फॉलिंग चैनल, वो 36,000 और 36,500 के आसपास का पड़ता है, अराउंड 350-400 के आसपास का। तो वही चीज हमें ये चार्ट पे दिखाई देती है, मतलब जो चार्ट पे दिखाई रही थी वही फिगर्स हमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऑप्शंस डेटा में। तो ऑप्शंस डेटा भी वही कह रहा है कि 36,500 पे सपोर्ट है, अगर ये वायलेट करता है देन द नेक्स्ट स्टॉप वुड बी एट 36,000। लेकिन ये डायरेक्शनल बायस कोई कंक्लूसिव तरीके से ये नहीं दिखा रहा है। सो व्हाट वी कैन ट्रांसलेट फ्रॉम और रादर इंटरप्रेट फ्रॉम दिस ऑप्शंस डेटा इज दैट बैंक निफ्टी फॉर दिस वीक for 28th July expiry is likely to stay between a gap of 1,000 point range, 36,000 being a worst case support, 37,000 being an outright resistance for the index, जहां तक ये हफ्ते की एक्सपायरी का सवाल है। तो इसमें भी सिंस एक्सपायरी है, बल्क ऑफ द प्रीमियम मीटिंग एंड एवरीथिंग हैज बीन डन, तो इस बार मैं बैंक निफ्टी में कोई डायरेक्शनल ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन हम जैसे निफ्टी में लिया था वैसा ही हम एक न्यूट्रल कॉल हम इसमें लेने की ट्राई करेंगे। We will again try and sell 36,000 put, because that's the point where maximum put OI is there. जो कि aggressive trader है, they can try and sell the 36,500 put also, but I would not suggest doing that, क्योंकि इसमें violation होने के chances हैं, भले ही वो momentary हो, लेकिन momentary violation भी होता है तब भी आपका stop loss तो trigger होगा ही होगा। So rather than trying to be overly aggressive, जहां की जरूरत नहीं है वहां पे aggressive होने की, वहां पे हम aggressive होने का मतलब नहीं है। So let's take a safer trade. Let's sell 36,000 put. That would give us a premium of 103, and also sell 37,000 call. That would give us a premium of 172, a total premium of 275 rupees. And 5,500 rupees would be the total premium income. ये ट्रेड जो है शॉर्ट स्ट्रैंगल ट्रेड है, जहां पे कोई डायरेक्शनल बायस हम नहीं ले रहे हैं, एंड वी जस्ट एक्सपेक्ट, इसका रैशनल यही है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी 36,000 से नीचे नहीं जाएगा और 37,000 के ऊपर नहीं जाएगा। ये ट्रेड को हमें एक्सपायरी तक इसको होल्ड करना है, और इसमें एग्जिट तभी करना है या तो वो 36,000 के नीचे जाता है या 37,000 के ऊपर जाता है। जब तक ये दो लेवल्स के बीच में ये रहता है, हमें कुछ नहीं करना है और हमें होल्ड करना है until expiry
to earn a total premium income of 5,500 per single lot. जैसे कि निफ्टी का रैशनल था, similar rationale is here in Bank Nifty. We expect that the Bank Nifty will not move beyond 37,000. We at the same point in time we also expect that Bank Nifty will not move below 36,000. और जब तक ये अगेन लाइक निफ्टी सेम लॉजिक है कि जब तक ये 37,000 के नीचे और 36,000 के ऊपर एक्सपायर होता है, दोनों ही ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर होंगे एंड वी विल बी एबल टू कीप दिस एंटायर प्रीमियम इनकम. तो ये दूसरा शॉर्ट स्ट्रेंगल हो गया बैंक निफ्टी का. सो दिस इज द पोटेंशियल ट्रेड्स दैट वी हैव फॉर टुडे. थोड़ा बहुत हम स्टॉक स्पेसिफिक देख लेते हैं. स्टॉक स्पेसिफिक में एक चीज मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स और बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, आई शुड नॉट बी सेइंग स्टॉक्स, इट इज एन इंडेक्स. फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स निफ्टी का और बैंक निफ्टी दोनों ही अभी लीडिंग क्वाड्रेंट में है रिलेटिव रोटेशन ग्राफ के. इसका मतलब ये होता है, मैं आपको दिखाता हूं, मे बी इट विल बी ऑफ सम इंटरेस्ट टू यू. थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे आपको, मैं RRC दिखा देता हूं इस हफ्ते का. दिस इज फॉर दिस वीक एंडिंग दिस फ्राइडे. ये निफ्टी बैंक है, बैंक निफ्टी है, और ये फाइनेंशियल सर्विस है जो कि अभी अभी जिसने रीडिंग क्वाड्रेंट में एंटर किया है, रोल ओवर किया है. निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, निफ्टी बैंक, ये दोनों ही अभी लीडिंग क्वाड्रेंट में है. और निफ्टी सर्विसेज सेक्टर जो कि अभी अभी इंप्रूविंग क्वाड्रेंट में रोल ओवर किया है. इसका मतलब ये होता है दैट the bulk of the underperformance might have ended for this particular sector. और HDFC Bank is a major component in all three of them. तो आज हम स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया में हम HDFC Bank हम लेते हैं. I have suggested a buy on HDFC Bank, and if we take allow me a moment. If we take a closer look on HDFC Bank भी एक ये वीकली चार्ट है. ये फॉलिंग चैनल के बाहर निकलने की ट्राई कर रहा है, निकला भी है, एंड इट इज सिटिंग ऑन ए स्ट्रॉन्ग असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न. मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूं. दिस इज वेयर आई सी द असेंडिंग ट्रायंगल बीइंग फॉर्म्ड. ये लाइन अभी मीनिंग नहीं है इसका क्योंकि स्टॉक प्राइस इसके ऊपर निकल चुका है. इट इज इनसाइड असेंडिंग ट्रायंगल ऑन द डेली चार्ट. और आज शायद थोड़ा सा अगर सबमिट भी है, आज फ्लैट है पूरा, इट जस्ट 1 रुपी डाउन, बट इट इज स्टिल अबाउट द 100 DMA एज वेल. 100 DMA के ऊपर भी आ गया है और इसमें पैराबोलिक SAR का बाय सिग्नल भी है. तो ये सब मिला जुला के वी सजेस्ट अ बाय ऑन HDFC बैंक. अगेन बिफोर आई लेट यू नो ऑफ द लेवल्स, मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये पोजिशनल ट्रेड है. इसमें कुछ दिनों का होल्डिंग पीरियड लग सकता है, सो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली. ये पोजिशनल ट्रेड है, इंट्राडे ट्रेड नहीं है. सो बाय HDFC बैंक between 1390 and 1395 with the target of 1440 and stop loss of 1365. 1365 का stop loss बनाए रखें. Buy in the zone of 1390 to 1395 and expect upper price targets of 1440. This is for HDFC Bank. दूसरा मैं देख रहा हूं बाइंग अपॉर्चुनिटी दैट इज इन ACC. ये डेली चार्ट है ACC का. मैं आज का मैं आपको जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूं अभी, बिकॉज वी हैव टू बिगिन विथ अ डेली चार्ट. इसमें काफी दिनों का इसमें कंसोलिडेशन आ गया है और कंसोलिडेशन के बाद इसने शुक्रवार को ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट देने की ट्राई की है. अपार्ट फ्रॉम दैट
It has also moved above both of its major DMAs. तीन में से दो DMA के ऊपर भी निकल चुका है, 100 और 50 DMA के ऊपर, जहां की वो रेसिस्ट बहुत कर रहा था, वहां से किया. इंपॉर्टेंटली द बॉलिंजर बैंड्स आर बिकमिंग नैरोअर. बॉलिंजर बैंड्स का मतलब ये होता है दैट there is a phase of low volatility in the stock. लो वॉलेटिलिटी क्यों थी? क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था. इट वाज विद इन अ कंजेशन जोन, सो ऑब्वियसली द बैंड विल गेट नैरोअर, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, इंट्राडे मूवमेंट कम हो जाएगी. और जब भी ये बॉलिंजर बैंड स्क्वीज में आने की अभी तैयारी कर रहा है, लेकिन नॉर्मली जब भी बॉलिंजर बैंड अपने नॉर्मल बैंड से नैरो होते हैं, तब वहां पे डायरेक्शनल मूव आने के चांसेस इंक्रीज हो जाता है. नाउ द डायरेक्शनल मूव कैन बी ऑन द ईदर साइड. बॉलिंजर बैंड का मतलब कोई डायरेक्शन सजेस्ट करना नहीं है, बट इट सिंपली इंप्लाइज कि अभी एक लो वॉलेटिलिटी फेज है और इसके बाद एक डायरेक्शनल मूव के साथ थोड़ा हाई वॉलेटिलिटी फेज आने की पूरी पॉसिबिलिटी है. कौन सी साइड पे आएगा फेज, ये बॉलिंजर बैंड नहीं बताता. दिस वी हैव टू decide taking into account the other piece of evidences present on the chart, और प्राइस कंफर्मेशन के बाद ही ऐसे मूव को लेना है. बॉलिंजर बैंड यूज करके किसी भी डायरेक्शनल बायस को एंटिसिपेट नहीं करता है. यू ऑलवेज हैव टू टेक द प्राइस कंफर्मेशन और द प्राइस मूव इनटू अकाउंट while taking any directional position. बैंड सिर्फ यही सजेस्ट करेंगे कि एक डायरेक्शनल मूव आने की तैयारी में है, वो डायरेक्शन सजेस्ट नहीं करता वो. So apart from this, RSI has also shown a 14-period high, and that has happened ahead of the breakout in price. तो एक तरह का छोटा सा बुलिश डाइवर्जेंस भी है RSI पे. एक कंजेशन के बाद इसने ऊपर आने की ट्राई भी की है. And if we take this on a live chart, जहां पे आज का बार भी प्लॉट हो गया हो, it is trading flat, mildly into positive. तो ओवरऑल इसने एक रेजिलियंस डिपिक्ट किया है with the Nifty down by almost 100 point. ACC is not down, it's trading flat. So ACC I recommend buying at 21.95. You can buy at current levels, doesn't make any difference. With the price target of 2250 and stop loss of 2160. So I recommend buying SEC at 2195. Expect a target of 2250 and maintain a stop loss of 2170. So that this brings us to end of today's session. Abhi मैं जितने questions है, I would encourage that please key in all your questions, put them either into the chat box. You can either put them into the Q&A box, and I'll take up one by one. But before I move to questions, मैं एक आज की चीज में रिफ्रेश कर दूं. मैंने निफ्टी लॉन्ग बाय रिकमेंड करा था 16,590 के आसपास, with the stop loss of 16,525 and the price target of 16,700. फिर हमने दो ऑप्शन ट्रेड देखे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में. दोनों ही न्यूट्रल कॉल थे, डायरेक्शनल बायस इसमें नहीं था. शॉर्ट स्ट्रेंगल थे, जहां पे निफ्टी हमने सेल करवाई थी इसकी 16,500 पुट और 17,000 की कॉल. बैंक निफ्टी में हमने शॉर्ट स्ट्रेंगल लिया था बाय सेलिंग 36,000 पुट एंड 37,000 कॉल. रैशनल वही था कि बैंक निफ्टी 36 और 37,000 के बीच में, और निफ्टी 16,500 और 17,500 के बीच में ये वीक के लिए एक्सपायरी होगी. तो हमने कोई डायरेक्शनल बायस या डायरेक्शनल फोकस लेने की हमने ट्राई नहीं करी है. सिर्फ एक न्यूट्रल कॉल लिया है, शॉर्ट स्ट्रेंगल लिया है, जिसका पर्पस है टू एंजॉय द प्रीमियम इनकम. तो ये प्रीमियम इनकम जब तक ही दोनों इंडेक्स ये जो मेंशन रेंज के बीच में है, तब तक हमें उसका प्रीमियम मिलेगा. आज रह गया तो आज का जो डीके है वो हमें मिलेगा. कल अगर टिक गया और अगर परसों टिक गया, तो यू विल बी एबल टू get the bulk of the premium that you have received and keep the bulk of the premium that you have received. Stock specific में I recommended SVFC Bank and buying SEC at current levels. Maintain the price target of 1440 in case of SDFC Bank and 2250 for ACC.
एंड आई रिपीट, जितने भी ट्रेड मैंने मेंशन करे हैं वो इंट्राडे नहीं है, वो पोजिशनल है. सो इफ यू आर ट्राइंग टू टेक एन इंट्राडे ट्रेड आउट ऑफ दिस, प्लीज मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली. मैं नहीं चाहता कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी का लॉस ट्रिगर हो, because that is something we would never like. So I'm making it very clear कि मैंने ये जो प्राइमरी एनालिसिस दिया है, स्टॉक्स का हो, निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, it is basically a positional analysis. So let's move to the question. My view on going long on delivery. I would rather avoid this stock क्योंकि इसने approximately 700-712 की रेंज में एक टेम्पररी टॉप मेरे हिसाब से फॉर्म किया है. एंड RSI has also crossed below 70 after being into overbought condition. तो एक तरह का ये पोटेंशियल टॉप इसमें है. तो इसमें अगर आप लॉन्ग तभी करें जब इसमें जितना भी करेक्शन जो भी थोड़ा बहुत आना हो वो आ जाए. फिर अगर वो अपमूव के चांसेस दिखाता है तब उसको लॉन्ग करें आप. या तो 712 मतलब इसका जो भी इंट्राडे जो लाइफ टाइम हाई है उसके ऊपर जाता है तो लॉन्ग करें. ये दोनों सूरतों में लॉन्ग करें. अभी इसमें कोई लॉन्ग करने के ट्रिगर्स नहीं है. आई वुड नॉट रिकमेंड गोइंग लॉन्ग ऑन डिलीवरी. Bank Nifty on the upper side, what will be the Bank Nifty up to 4th August? 4th August, बैंक निफ्टी ओवरऑल 37,000 के पास जाने की गुंजाइश है अप टू 4th August. But there is a caveat, it should be able to keep its head above 36,300. 36,300 के ऊपर ये टिकता है तो 37,000 को टच करने की इसमें पॉसिबिलिटी है. Any slip below 36,300 will take it to 36,000 जहां पे वो थोड़ा बहुत वीक हो सकता है. लेकिन अगर 36 कहने का मतलब क्या है, 36,300 के नीचे जाता है then you forget about reaching 37,000 up to 4th August. ये मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं. थिंग्स में चेंज, बट बहरहाल लेवल्स ये बता रहे हैं कि जब तक 36,300 के ऊपर है इसके 37,000 तक जाने के चांसेस है. Below 36,300 it can get weaker. View on campus activewear. 1 minute. Fresh breakout after some consolidation. और तो इसको अगर आप लॉन्ग है तो इसमें 370 के क्लोज लेवल का स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसमें यू कैन कंटिन्यू लॉन्ग. इफ यू वांट टू टेक लॉन्ग, मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑफ क्लोज बिलो 388 क्योंकि इट्स अ फ्रेश ब्रेकआउट लेकिन वो थोड़ा बहुत ओवरबॉट भी है तो लॉन्ग हो सकता है. इट इज गॉट अ स्ट्रेंथ दैट इट हैज फर्दर रेजिस्टेंस अराउंड 417 rupees. Limited upsides, but the stock is good and it is in overall uptrend. PC Jewelers. If you are if you are long, better book some profits and exit. Exit के चांस मिलेंगे नहीं. आज लोअर सर्किट में है तो दिस इज नॉट अ स्टॉक इवन वर्थ टेक्निकली एनालाइजिंग क्योंकि इसमें या तो सर्किट्स में ऊपर गया है या सर्किट्स में नीचे गया है. अगर आप लॉन्ग है इसमें तो इसमें प्रॉफिट बुक कर ले. अगर आप लॉन्ग जाने की सोच रहे हैं देन आई विल टेल यू टू अवॉइड दिस स्टॉक. शॉर्ट करने की तो बात ही नहीं है बिकॉज इट्स नॉट एन एफएनओ स्टॉक. तो लॉन्ग है तो इसमें ट्राई एंड एग्जिट. आज ट्राई करेंगे, कल ट्राई करेंगे तो निकल लेंगे आप इसमें से. लॉन्ग करने की मैं सलाह नहीं दूंगा. इट इज एन अवॉइड, टोटल अवॉइड. You're short in Hindustan Unilever at 2362. I think you are short or you want to go short? No, I would not suggest shorting the stock. देखिए इसमें मैं एक चीज और बताऊंगा, टेक ए मिनट, कि अभी हिंदुस्तान लीवर की प्राइस ऐसी है कि अगर आप लॉन्ग है तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स. नाउ आई वुड लाइक टू पॉइंट वन थिंग इन ए एक्सट्रीमली क्लियर वे कि बुकिंग प्रॉफिट
जब भी कोई बोलता है कि अभी ये स्टॉक बहुत ऊपर आ गया है, नाउ बुक प्रॉफिट, इट डजंट मीन गोइंग शॉर्ट, क्योंकि इसमें अगर ओवरऑल अगर स्ट्रांग है स्टॉक, जैसे कि हिंदुस्तान लीवर है, तो थोड़े बहुत कंसोलिडेशन के बाद, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस और इन टर्म्स ऑफ टाइम, जहां पे ऑक्सीलेटर्स वगैरह सब ठीक हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, इट कैन रिज्यूम द अप मूव एंड पुट इनटू लॉस। तो इसमें अगर आप ये चार्ट पे मेरा ओपिनियन लेते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप इसमें लॉन्ग है तो लॉन्ग का प्रॉफिट बुक करें, शॉर्ट ना करें। दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, ये शॉर्ट का कैंडिडेट नहीं है। 10, 20, 30, 40 रुपए हियर एंड देयर यू माइट गेट, बट दैट इज नॉट द पॉइंट यू विल शॉर्ट। प्रॉफिट बुकिंग का ये चार्ट है, नो डाउट अबाउट दैट, बट प्रॉफिट बुकिंग प्रॉफिट डजंट मीन गोइंग शॉर्ट, सो आई वुड नॉट एडवाइज यू टू गो शॉर्ट on Hindustan Lever. FSL. Again, there are no technical triggers. The stock is trying to reverse its trend, but fresh longs only above 116. जब तक ये 116 के नीचे है, तब तक there are no triggers for any fresh directional entry in the stock. Hero MotoCorp. If you are long, then I would suggest booking profits. अगर fresh entry लेनी है तो 2880 के ऊपर, तब तक नहीं। I repeat, अगर आप long है तो consider booking profits. If you want to go long, 2880 के ऊपर। अगर आप short करने की try कर रहे हैं तो you can go short by keeping a very strong stop loss of 2880. I don't know what we are trying to do, तो मैं ये आपको I'm giving you all the 3 scenarios. लॉन्ग अभी नहीं करना है, लॉन्ग है तो इसमें प्रॉफिट बुक करना है। अगर शॉर्ट जाना चाहते हैं तो एक 2880 के बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नैरो स्टॉप लॉस के साथ आप जा सकते हैं। If you want to reach out to me, I think the better way to reach out would be through the email, जो कि मैं यहाँ पे mention कर रहा हूँ, milan.vaishnav@equityresearch.asia या milan.v@chartwizard.a. Reach out to me if you need to, if you have any questions or query or need to have a word with me, तो आप यहाँ पे मुझे reach out कर सकते हैं। IRCTC. No triggers, no trigger to go long, no trigger to go short. It's an avoid. अभी कुछ करना नहीं है इसमें। JSW Steel. JSW Steel को आप शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे तो 571 पे इसका सपोर्ट है, तो आई एम नॉट श्योर वेदर यू शुड बी गोइंग शॉर्ट सो लॉन्ग एज इट इज अबव 571। 571 के ऊपर है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। 71 के नीचे, 571 के नीचे आपको ये स्लिप करता हुआ दिखाई दे, देन यू कैन अटेम्प्ट अ शॉर्ट ऑन दिस स्टॉक। Is IRCTC worth buying? No, there are no triggers on IRCTC. It is just under a decline, a corrective decline. इसमें बाइंग और तीनों मूविंग एवरेज के नीचे हैं, सो आई थिंक इट्स बेटर एंड अवॉइड। इसमें कोई आपको इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत आएगी इफ यू गेट स्टक अप इन दिस स्टॉक, सो आई वुड सजेस्ट नॉट डूइंग दैट। कैन आई गो शॉर्ट इन हिंदुस्तान यूनिलीवर? आई थिंक आई जस्ट अटेंडेड दिस क्वेश्चन। शॉर्ट नहीं जाना है, द स्टॉक स्ट्रॉन्ग है तो इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकती है। लॉन्ग है तो, बट दैट वुड नॉट मीन गोइंग शॉर्ट एज आई जस्ट सेड।
any view on metals? Metals overall, they will remain under consolidation, under some decline and some consolidation, whatever you call it. इसमें aggressive buying की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा. इसके दो reason हैं कि tomorrow, day after tomorrow, Fed will come with yet another rate hike. डॉलर अभी 109 से नीचे रिट्रेस हुआ है, बट दैट कैन सी सम स्पाइक्स इन द डॉलर एंड इट मे नॉट स्पेल आउट वेल फॉर द मेटल्स. तो मेटल में कुछ भी अगर पोजिशनल कॉल लेना है आपको, वेट अंटिल द फेड रेट हाइक इज ओवर, क्योंकि 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक तो डिस्काउंटेड है, बट देयर आर माइनर पॉसिबिलिटीज ऑफ 100 बेसिस पॉइंट एज वेल. बट इन ईदर केस एनी स्पाइक्स इन डॉलर, कोई भी ऐसा इवेंट हो जहां पे यूएस डॉलर में स्पाइक्स आने की गुंजाइश है मेटल्स में, उसके बाद ही कोई पोजिशनल ट्रेड करें, अभी नहीं. बलरामपुर चीनी. नो ट्रिगर टू गो लॉन्ग और शॉर्ट. अगर लॉन्ग करना है तो 396 के ऊपर एक सेफ ट्रेड रहेगा. बाकी अगर दैट इज व्हाट आई कैन से राइट नाउ, इट इज रेसिस्टिंग टू द 50 डीएमए ऑफ 381 380.95. तो अभी बलरामपुर में अगर 381 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा अपसाइड के लिए आप बाय कर सकते हैं, बट अगेन इट हैज ए रेजिस्टेंस एट अराउंड 396. KRBL डबल टॉप पे रेसिस्ट किया है 263 के आसपास एंड मोस्ट इमीडिएट सपोर्ट एट अराउंड 240. इन बिटवीन दिस देयर आर नो फ्रेश ट्रिगर्स. तो डिपेंड्स आपकी लॉन्ग है या शॉर्ट, इसको अकॉर्डिंगली आप इससे आप डील करें. I would suggest everyone कि जो भी क्वेश्चन है, rather than asking for just about the stock, if you mention your intention कि भाई आप लॉन्ग है इसमें, या प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, या शॉर्ट करना चाहते हैं, या फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, that will help me give you a more precise answer. इसमें मैं आपको न्यूट्रली रिप्लाई कर रहा हूँ because I don't know what the position is, whether you have a position, whether you are trying to take a position, क्या करना है मुझे मालूम नहीं है. So I would always encourage everyone कि आप क्वेश्चन पूछे तो साथ में आपको क्या करना है वो भी पूछे. It will help me, it will not help me, but it will help you to get a clear answer from me. So it's just a suggestion. Varrock Engineering. Again, if you're contemplating a fresh entry, do it above 345, not before that. इसकी 100 और 200 DMA दोनों ही 343 और 345 के बीच में है. तो जब तक ये उसके ऊपर नहीं जाता, there is no point in taking any fresh entry. Lupin. No entry to go long. लॉन्ग जाना है तो 661 के ऊपर. बाकी ये स्टॉक अगर उसकी 50 कौन सी डीएमए है, 1 मिनट, ये 50 डीएमए पे इट इज क्लिंचिंग ऑन टू इट्स 50 डीएमए. 50 डीएमए के नीचे जाएगा तो इट में इनवाइट सम वीकनेस, लेकिन अभी लुपिन में कोई लॉन्ग जाने के ट्रिगर्स नहीं है. शॉर्ट जाना है तो आप 661 के स्टॉप लॉस के साथ इसको शॉर्ट कर सकते हैं. अगेन आई डोंट नो वेदर यू आर एन इन्वेस्टर और ट्रेडर, सो आई एम गिविंग यू बोथ द सिनेरियोस. कैन आई होल्ड जीएसके फार्मा फॉर लॉन्ग टर्म? I'm sorry, I'm not finding the symbol here. Do you mean GlaxoSmithKline? लॉन्ग टर्म, व्हाट डू यू कॉल ए लॉन्ग टर्म? क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म हम देखते हैं ग्लैक्सो का, even then since last almost 2 years it has not been beyond this range of 1400 to 1700 kind of thing. So
For holding for a longer term, you will get better pharma stocks. जीएसके फार्मा अगर ये रेंज को जिस दिन भी वो ब्रीच करे ऑन द अपसाइड 1700 के ऊपर जाता है, तब इसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने की ट्राई करें. बाकी अदरवाइज इवन इफ यू गो बैक बाय 2 years 3 years, इट इज नॉट मूविंग बियॉन्ड 1700 पॉइंट्स और 1700 रुपीज, और ओवरऑल 2 साल से तो वो बिल्कुल ही साइडवेज रेंज में है विद नो डायरेक्शनल बायर्स or directional focus. So overall, I would not be in favor of adding GSK Pharma, GlaxoSmithKline Pharma in your portfolio, even if it is for a longer term. Interesting. Again, I don't know what you want to do. अगर लॉन्ग लेना है तो आप स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं. द मोस्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस इज एट अराउंड 1025. Yes, you can buy Reliance Industries at this level for 2 to 3 years horizon. You can expect every decline in this stock would be a buying opportunity. भले ही आज आपको लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, तो अगर लेने के बाद अगर 2% 3% या कुछ नीचे जाता है, then you should not be worried about that. So you can, yes, go long with a medium term horizon of 2 to 3 years. Expect a price targets of 2800 plus on this stock. Pharma sector, what the overall trend in pharma sector would be on resilient side, I would say. If you let's talk it from the index perspective. ये फार्मा इंडेक्स है, अभी वो लैगिंग क्वाड्रेंट में है. इट इज रोल्ड इनसाइड द लैगिंग क्वाड्रेंट व्हेन बेंचमार्क्ड अगेंस्ट द ब्रॉडर मार्केट्स. लेकिन ओवरऑल इसमें प्राइमरी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है. इट इज जस्ट इनसाइड इंटरमीडिएट ट्रेंड, जिसे सेकेंडरी ट्रेंड हम बोलते हैं. तो फार्मा विल परफॉर्म बेटर, बट फ्रॉम ए मीडियम टर्म, मतलब 2 to 3 years इन्वेस्टमेंट होराइजन. लेकिन for trading purpose, it would be necessary that you remain very stock specific. Otherwise, from investment point of view, yes, you can have few good pharma stocks in your portfolio. I think I'm being told that we are running a bit out of time. So I would suggest that any questions that you might have, जो कि मैं आज आंसर नहीं कर पाया हूँ, आप इसको मेरे मेल पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, या यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन ट्विटर. आई विल डू माय लेवल बेस्ट टू रीच आउट टू यू ऑन इंडिविजुअल बेसिस. भले ही इसमें एक आध दिन का गैप जाए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू. तो आप मुझे क्वेश्चंस है वो मुझे आप मेल कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम we are running out of the time allotted for the slot. So you can reach out to me. I believe कि आज का ट्रेड जो मैंने सजेस्ट करा था, going long in Nifty with a stop loss, taking a neutral option calls in both Nifty and Bank Nifty, playing a short strangle, and going long in HDFC Bank and SEC, of course, on a positional basis will help you and bring some money for all of us. So I thank you very much for connecting with me today. And until we meet again, this is Milan Vaishnav signing off for today. Thank you very much for connecting. Thank you.